Shubhodaya bachchon. A very good morning to all of the students. Today we are going to learn the summary of the lesson number 2, Laakh ki chudiyan. You may get a doubt, what is this laakh? Chudiyan means bangles. Laakh means it is a special wax used for making bangles. And not only for that, it is used to seal the important documents of government and the examination papers of board. And now in this lesson I am going to show that wax, how it looks like and its color is. लाख की चूड़ियाँ. लाख मतलब एक ऐसी पदार्थ है जो एक कीटाणु से उत्पन्न होती है. वह कीटाणु अपने आप को बचाने के लिए एक रस रूपी वैक्स यानी कि पदार्थ को स्रावित करती है. उसी के द्वारा सरकार के बहुत सारे मुख्य कागज उन सब को बंद रखने के लिए इस पदार्थ का उपयोग करते हैं. और उस पदार्थ कैसे दिखाई देता है, उसका रंग और उसका उपयोग के संदर्भ में कुछ चित्र हम आपको इस पाठ में दिखाने जा रहे हैं. In this lesson, the writer wants to point out the sensitive point of industrialization and the small-scale industries, cottage and handicraft industries were suffered by the industrialization or machine age. इस पाठ के द्वारा लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करते हैं कि जो औद्योगिकरण की वजह से हस्तकलाओं के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है. इस पाठ में लेखक और बदलू नामक दो व्यक्तियों के बीच में का वार्तालाप और उन दोनों के बीच में का जो विषय चल रहा था, यानी कि जिस विषय के बारे में लेखक कहना चाह रहे हैं उस संदर्भ के बारे में इस पाठ में बताया गया है. In this lesson, the point was that what he wants to point out, like industrialization and handicrafts, that sensitive point has been touched with a human values and sympathetic way to that particular industry. हर साल लेखक अपने मामा के गांव जाते थे और उस गांव में उनको बदलू नामक व्यक्ति बहुत ही पसंद था. Every year the writer used to visit his uncle's house. There he likes the person called Mr. Badlu. बदलू उनको इस वजह से पसंद है कि वो लाख की चूड़ियां बनाते थे और लेखक के लिए बचपन में उन्होंने बहुत सारे लाख की रंग बिरंगे गोलियां बनाकर देते थे. और वह जब गांव से वापस आते थे वो सारे रंग बिरंगी लाख की गोलियां अपने दोस्तों को दिखाकर बहुत ही खुश होते थे लेखक. He likes him because he used to make a different colored sealing wax marbles for the writer and he used to give him or present him. So by showing all these things, when he returns to his city to all his friends, he used to feel very happy. अब इस पाठ में बदलू के घर के बारे में और उनका व्यवहार के बारे में लेखक कहना चाह रहे हैं. गांव में घर बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसके सामने भी आंगन बहुत बड़े होते हैं. Now the writer wants to explain about the nature of the Badlu and the house of Badlus and the variations between city and a village through all these things. बदलू के घर के सामने एक बहुत बड़ा आंगन था और उसके बीच में एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ था. In front of Badlu's house there is a big place that we can call as a lawn. In that place there is a big neem tree. बदलू उस पेड़ के नीचे में बैठकर अपना लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था. लाख एक ऐसा पदार्थ था, उसको भट्टी में जलाकर
उसको पिघलाकर फिर बाद में उसे मुलायम बनाकर चूड़ियां बनाता था। Under the neem tree, he used to sit and make the bangles. For making the bangles, he used to melt that wax sealing metal, cool it, and then he used to make bangles in different sizes and shapes. वह एक चौखट पे बैठकर यह काम पूरा करता था। He used to sit on a table and he used to make his bangles work. लेखक दिन भर बदलू के घर पे रहकर उनका दोपहर का पूरा समय निकालते थे, उनसे बात करते हुए, और वो किस तरीके से वो चूड़ियां बना रहे हैं, उसमें कितना मेहनत लग रही है, चुपचाप बैठकर देखते रहते थे। The writer used to spend his most of the times at Badlu's house and he used to watch how he is making the bangles and how difficult it is and what is the procedure by sitting silently in front of him. बदलू राइटर को यानी कि लेखक को लल्ला कहकर बुलाते थे। बदलू यूज्ड टू कॉल हिम माय डियर। बदलू लेखक को अपने घर में गाय रहने की वजह से दूध का मलाई वगैरह खिलाते थे और उसके साथ साथ ही उनके घर में आम का बगीचा रहने की वजह से बहुत सारे आम भी खिलाते थे। बदलू यूज्ड टू गिव मिल्क and cream to the writer because he is a small boy, and in the villages the people give more respect for the guests who come to their houses. They show all their love and affection to them, and he used to give mangoes from his garden to eat. Whenever the writer used to go, he used to offer a seat. जैसे ही लेखक वहां पहुंचते थे, बदलू उनके लिए एक मचिया मंगवाते थे। मचिया मीन्स अ वुडन स्टूल। बदलू एक मनिहार था। मनिहार का मतलब यह है कि चूड़ियां बनाने वाला। बदलू इज अ मनिहार, दैट मीन्स ही इज अ बैंगल मेकर। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। बैंगल मेकिंग इज देयर एंसेस्ट्रल वर्क विच हैज कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम हिज forefathers to Badlu, and he used to make different colored bangles in a beautiful manner. बदलू का स्वभाव बहुत सीधा साधा था। बदलू इज अ सिंपल मैन। गांव में किसी की शादी होती थी तो उस समय पे बदलू को चूड़ियां बनाने के लिए बताया जाता था। बदलू यूज्ड टू मेक बैंगल्स फॉर द ओकेजन्स ऑफ मैरिजेस। बदलू दिन भर काम करने के बाद 4 से 6 जोड़े ही बना पाता था। आफ्टर वर्किंग द होल डे he can make only 4 to 6 pairs of bangles. बातों बातों में बदलू लल्ला से इस प्रकार पूछते हैं, शहरों में तो हर विषय अलग है ना बेटा? In the meanwhile, Badlu asks the writer that in the cities the life is very different. Is it right? शहरों में लड़कियां अपने पति के हाथ पकड़कर घूमते रहते हैं। उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। बदलू आस्क्ड दैट द सिटी गर्ल्स आर वेरी gentle, so maybe they cannot wear the bangles of lakh, and their hands are very